کورونا وائرس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، اور جو چیلنجز ہیں، جو آٹے اور چینی کے چیلنجز تھے، اس کے اندر ایک آپ کو واضح فرق نظر آتا۔ بہرحال شہباز شریف صاحب کو نیب نے طلب کیا، انہوں نے کہا کہ میں تمام آپ کو ڈاکیومنٹس دے چکا ہوں، میں کینسر سروائیور ہوں، مجھے بہت میڈیکل جو ایشوز ہیں، میرے لیے ضروری ہے کہ میں آئسولیشن میں رہوں۔ لیکن نیب نے اس پر کوئی بات نہ سنی اور پھر ایک نوٹس جاری کر دیا کہ 22 تاریخ کو آپ نیب کے سامنے پیش ہوں۔ ایسی کیا عجلت ہے، ایسی کیا جلدی ہے؟ میں حقائق کچھ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 5 اکتوبر 2018 کو شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا نیب نے صاف پانی کے کیس میں۔ وہاں سے جب کچھ نہ ملا تو آشیانہ کا کیس بنانے کی کوشش کی، پھر ایک گندے نالے کی کنسٹرکشن کا کیس بنانے کی کوشش کی۔ جب وہاں نہ کچھ ملا تو 23 اکتوبر 2018 کو ایسٹس بیانڈ مینز کا کیس ان پر بنانے کی کوشش کی یا بنایا، جو بھی کیا۔ 14 فروری 2019 کو شہباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے بیل دی۔ ٹوٹل 132 دن حراست میں رہے، 70 دن نیب کی کسٹڈی میں رہے۔ جو تفتیش انہوں نے کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی، کیونکہ مقصد تو حد تک عزت ہوتا ہے، وہ انہوں نے کی، موقع ان کے پاس تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے لکھا، فیصلہ لکھا ہوا ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے کہ شہباز شریف کو کوئی مس یوز آف اتھارٹی کا کیس نہیں ہے، کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، اور نیب نے جو کچھ کیا ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ نیب سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف گئی، لیکن وہاں سے بھی اپنا کیس وڈرا کر لیا، یعنی اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کے پاس کوئی مزید تفتیش کا کوئی مزید ضرورت نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجھ پر ایک پیسے کی کرپشن ثابت کر دیں، میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا۔ آج یہ 2 سال ہونے کو ہیں، طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں کوئی شہزاد اکبر صاحب، کون سے ملک سے آئے ہیں، کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی ذرا معلوم کر لیں۔ انہوں نے یہاں پر کیا ان کا تعلق نیب سے ہے یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر یہ کہا جی ٹی وی پر آ کر کئی بار کہ 56 کمپنیاں بنی ہوئی ہیں پنجاب گورنمنٹ میں اور بڑا اس میں کرپشن ہوئی ہے۔ وہ بات جب ختم ہو گئی، کیونکہ وہاں جب کچھ نہیں ملا تو پھر ایک برطانوی صحافی کو لے آئے پیسے دے کر، جس نے ڈیلی میل میں لکھا کہ جو برٹش جو ایجنسی ہے گورنمنٹ کی ڈیفڈ، اس نے جو کام کیے ہیں اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے۔ اس بیان کے اگلے دن برطانوی حکومت نے اتوار کے دن دفتر کھلوا کر یہ بیان دیا کہ ایسی کوئی کرپشن بھی اس معاملے میں نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ آدمی ہے جو ایس اے پی ایم ہے پرائم منسٹر کا، نیب کے حوالے سے بیان دیتا ہے، الزامات لگاتا ہے، پاکستان کی حد تک کرواتا ہے۔ یہ اس حکومت کے کام ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کیس دائر کر دیا اس اخبار کے خلاف لندن کی عدالتوں میں جو وہاں پر ہے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے گھر، ان کی بیٹی کے گھر پر چھاپے ڈالے گئے، میڈیا کو بیان دیے گئے کہ ہمیں بہت سا مواد یہاں سے ملا ہے۔ اس بات کو بھی 4-6 مہینے ہو چکے ہیں، کیا ملا ہے کیا نہیں ملا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو میرے ایم پی اے ہیں لاہور میں، جس حلقے سے میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، وہاں سے حمزہ شہباز صاحب صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں پروونشل اسمبلی میں، شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں، 90 دن سے زیادہ ہو گئے حراست میں، کوئی پتہ نہیں ہے کیس کیا ہے، کیوں ہے۔ یہ معاملات آج نیب کے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ جہاں پر اتنا بڑا معاملہ ملک کے اندر اتنا بڑا چیلنج ہو، تو حکمران جو ہیں وہ آج جھوٹے کیس بنانے میں، حکومتی مشینری استعمال کر کے اپوزیشن کو دبانے میں مصروف ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو جو کویسچنر دیا گیا
2018 से लेके आज तक जो इंफॉर्मेशन मांगी नैब ने वो उन्होंने मुहैया की। जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, बैंक अकाउंट चाहिए थे, एसेट्स चाहिए थे, इनकम्स चाहिए थी, एक्सपेंडिचर चाहिए थे, वो सब मुहैया किए हैं, वो रिकॉर्ड पर हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान से भी मांग लें, उसके क्या एसेट्स है, उसकी क्या इनकम है, उसके क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, FBI का रिकॉर्ड क्या कहता है। इस शहजाद अकबर से भी मांग लें, चेयरमैन नैब भी दे दे, अवाम के सामने रखें, ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी एक दफ़ा हो जाए। क्या मकसद है बुलाने का, क्या मकसद है हत्या की इज्जत का, इसका कोई जवाब देने वाला है आज मुल्क के अंदर? हमें ना हम जेल से घबराते हैं, ना हम स्नैब से घबराते हैं। लेकिन मैं सिर्फ सवाल ये करता हूं कि जब इतना बड़ा चैलेंज मुल्क में हो, आप कौमी असम्बली में लीडर द अपोजिशन को सिर्फ बेइज्जती करने के लिए, कोई और मकसद नहीं है। आप गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। किस मकसद के लिए, क्यों, कौन सी ऐसी चीज है आपके पास? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो बातें नैब के बारे में कही गई हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं खुद अदालत में मौजूद था साद रफीक साहब के केस में, कि नैब के मामलात या नलायकी पर मबनी हैं या बदनीयती पर मबनी हैं। तो आज जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, ये नलायकी है, ये बदनीयती है, ये हुकूमत की सोच की अक्कासी है, ये वो घटिया सोच है जो आज पाकिस्तान में हुक्मरान है। हम इसका मुकाबला करेंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के सामने, और हम चाहेंगे कि जो 22 तारीख को तफ्तीश करनी है वो कैमरा लगाकर पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि आप क्या तफ्तीश करते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन से। अगर इस मुल्क में लीडर ऑफ द अपोजिशन महफूज नहीं है नैब के हथकंडों से, इस हुकूमत की घटिया सोच से, तो फिर कौन सा शख्स महफूज होगा? कौन सा इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा? कौन आपकी मदद को आएगा? कौन इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाएगा? कौन इस मुल्क में सियासत करेगा? ये वो सवाल हैं जो आज पाकिस्तान के अवाम पूछते हैं। बात शहबाज शरीफ की नहीं है, बात किसी एक शख्स की नहीं है, बात उस मामले की है जिसको हमने इस्तेमाल करके मुल्क में सियासत को भी तबाह किया, मुल्क की मईशत को भी तबाह किया, और आज कोरोना वायरस जैसे मामले को एक तरफ रख के हम इन कामों में मुलव्वस हैं। ये मामूली बातें नहीं हैं। ये आज मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस किस्म के हुक्मरान, इस किस्म के इदारे जो नैब है, इनके होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। ये बड़ी वाज़ेह बात है। नैब को चीनी का स्कैंडल नज़र नहीं आता, नैब को आटे का स्कैंडल नज़र नहीं आता, नैब को जो कोरोना वायरस के मामलात में जो करप्शन हो रही है, जो वजीर खुद इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि यहाँ घटिया माल खरीदा जा रहा है, उसमें कोई बात नहीं है। जो KPT का स्कैंडल है वो नैब को नज़र नहीं आता, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्कैंडल हैं वो नज़र नहीं आते, जो स्टेट बैंक में हो रहा है वो नज़र नहीं आता। हम पहले दिन से कह रहे थे कि स्टेट बैंक रेट जो है ये बढ़ाकर मुल्क की मईशत को तबाह कर रहा है। आज वापस 9% पे इंटरेस्ट रेट आया है। कैसे आया है? क्या आपका पहला फैसला गलत था या आज का फैसला गलत है? तो क्यों इसको 6% पर नहीं लाते जहां से आप लेकर गए थे, ताकि मुल्क की मईशत बढ़ सके? ये मामलात आज हैं। तो हम सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के सामने अपना मुकदमा रखना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि आज सब मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला करें, लेकिन ये इमरान खान है, ये उसकी सोच है जो मुल्क में तफरीक चाहती है, अपनी सियासत को बचाना चाहते हैं, अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। आज पाकिस्तान के अवाम इमरान खान, इस हुकूमत की नाकामी को माफ़ नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह इस नैब का भी मुकाबला करेंगे, और हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड पर सारी बात आए, TV के कैमरे लगाएं और शहबाज शरीफ से तफ्तीश करें, और जो सवाल शहबाज शरीफ से करते हैं वो चेयरमैन नैब भी जवाब दे दे, इमरान खान भी दे दे। ये जो बाकी जो इनके ये चमचे बैठे हुए हैं, कोई ऐसे PM बना हुआ है, एक फौज है इस मुल्क में, वो भी जवाब दे दें कि उनके असासे कहाँ हैं, उनकी इनकम क्या है, उनके एक्सपेंडिचर क्या है, उनके पास, उनके वालिद के पास क्या था। ये सवालों के जवाब दे दें। आपका बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा, बस ये हो गया, सवाल है।
चलो हम दो बुला ही लें, दो रिपोर्टर दे लो सर, पूछ लीजिए। अच्छा, कोरोना से निपटने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, आपने कुछ नजर से देखे और क्या अपोजिशन हुकूमत के साथ चलने को तैयार है कोरोना के हवाले से? देखिए, कोरोना के हवाले से हमने पहले दिन से, सबसे पहले कोरोना का मसला असेंबली में हमने उठाया। हम पहले दिन से तैयार हैं, हमने हाथ बढ़ाया, हमने कहा कि हम साथ हैं और हम आज भी कोरोना वायरस के मामले में साथ हैं। लेकिन जो नाकामियाँ हैं उनको अवाम के सामने रखना ज़रूरी है। ये तामीरी तनकीद है, मकसद ये है कि हालात बेहतर करें। और सबसे आज खौफनाक पहलू ये है कि जब मुल्क में इन्फेक्शन का रेट बढ़ रहा है, आप लॉकडाउन में आसानी पैदा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये इस मामले को बहुत ख़राब कर देगा। वज़ीर आज़म खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहा है कि मई के अंदर बहुत अमवात होंगी। तो जब आप खुद कह रहे हैं कि आगे हालात बदतर होंगे, बेहतर नहीं हो रहे, तो आप किस तरह इस चैलेंज का सिर्फ एक मुकाबला है कि लॉकडाउन को बढ़ाएं। जितना ज़्यादा लॉकडाउन होगा, जितनी सख्ती होगी, इतना ये चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है। आप उसमें कमी करना चाहते हैं, ये बात समझ से बाहर है। एक तो ये है कि बजट आने वाला है, कोई पता ही नहीं है कि कैसे बजट पर आएगा, कैसे उसे बहस होगी, कैसे मंजूरी होगी। दूसरा ये बड़ा अजीब तमाशा दुनिया भी कह रही है कि आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि 191 बंदे मरने चाहिए थे, इतने क्यों नहीं मरे। ये तो बड़ा अजीब, अवाम भी इसको बड़े अजीब नज़र से देख रही कि आप ये चाहते हैं कि बंदे मरे। नहीं, मैं भी देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि कौमी असम्बली का इजलास बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। पूरी दुनिया में असम्बलियों के इजलास हो रहे हैं, उसका एक तरीका है, आप अपने से तरीका तय कर लें, कल इजलास बुलाया जा सकता है। ये तो सिर्फ बहाने हैं इजलास ना बुलाने के, ताकि हुकूमत की जो फेलियर्स हैं, जो उसकी नाकामी है, वो अवाम के सामने ना आ सकें। ये हुकूमत सिर्फ ये चाहती है, कोई और मकसद नहीं है। और जी, देखिए, अगर कोई रोना चाहता है वो बेशक रोए, लेकिन रोते हुए वीडियो देखिए, हुक्मरान जो होते हैं वो छुप कर रोते हैं, वो अवाम के सामने नहीं रोते। अवाम जब रो रही हो तो उनके दर्द का उनको एहसास होना चाहिए। आज पाकिस्तान की अवाम तकलीफ में है, लेकिन हुक्मरान तकलीफ में नहीं है। हुक्मरानों के रोने का वक्त नहीं है, हुक्मरानों के काम करने का वक्त है। काम नजर नहीं आता। चलो आप आखिरी पूछ। पीपल्स पार्टी ने टाइगर फोर्स पर एतराज उठा दिए, हमने सबसे पहले उठाया था कि टाइगर फोर्स का मकसद क्या है। आपने सियासी बुनियादों पर, मैंने खुद पिंडी में लोगों को आके अप्लाई करें, किसी को नोटिस नहीं आया। सिर्फ जो पीटीआई का वर्कर है उसको बुलाया जा रहा है, और ये करप्शन का सबसे बड़ा जरिया होगा। ये सबसे बड़ी नाकामी होगी इस हुकूमत की। आज भी वक्त है कि संभल जाएं, और ये जो लॉकडाउन के मामलात हैं इस पर संजीदगी से गौर करें कि हमने किस तरह इस वायरस का मुकाबला करना है, जो मुल्क में मईशत है उसको कैसे बेहतर बनाना है, जो मेडिकल चैलेंजेस उनको कैसे करना है, और अवाम को कैसे बताएंगे कि आज क्या मुल्क के अंदर मामलात हैं। वज़ीर आज़म कुछ कहता है, वज़ीर कुछ कहते हैं, हकीकत कुछ और होती है। एक बड़ी बदनसीबी है कि आज ऐसे हुक्मरान मुल्क में हैं। PMLN के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ को नैब ने 22 तारीख को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया है। कभी साफ़ पानी केस में गिरफ़्तार किया जाता है, कभी आशियाना केस, कभी गंदे नाले की कंस्ट्रक्शन का मामला सामने लाया जाता है। इमरान खान की सोच मुल्क को तफरीक कर रही है।